Hello students, today I will discuss principle of growth and development from the paper Child in Growing Up, semester 1 and unit 1. Before I discuss principle of growth and development, I would like to give you a brief about what is growth and development. Growth is regarded as multiplication of cells as growth in height, weight, while development refer to the changes organism as a whole. ग्रोथ सेल्स में मल्टीप्लिकेशन और हाइट में और वेट में वृद्धि होना होता है और डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटल हो, फिजिकल हो एंड इंटेलेक्चुअल हो, दैट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डेवलपमेंट यानी कि विकास. So the first principle is principle of cephalocaudal. As you can see in the diagram, the arrows from head to the lower portion of the body. This principle describes the direction of growth and development. That is, from the head region, it starts from the head region and followed by the other organs, develops to the downward portion of the body. The child gains control of the head first, then the arms, then the legs. Infants develop control of the head and face movement at first 2 months. In the next few months, they are able to lift themselves up by using their arm. Next, gain control over leg and able to crawl, stand, walk, run, jump, climb, and the activity increase day by day. So, cephalocaudal principle is based on जैसे कि मैं अभी बताया हमने कि डायरेक्शन जो होता है वो ग्रोथ का हेड से होता है, सर से नीचे की तरफ, नीचे की बॉडी की तरफ, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी का होता है. सबसे पहले आपने खुद भी देखा होगा, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब एक बेबी छोटा होता है तो उसका सबसे पहले जो हेड है वो हम लोग उसको हाथ से नीचे से पकड़ते हैं और फिर वो अपना सर को बैलेंस पहले करता है और उसके बाद उसकी लोअर बॉडी, आर्म्स एंड लिम्स को वो बॉडी कर पाता है. बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे कि जब वो सबसे पहले अपनी गर्दन को टिकाता है कहीं पे और फिर बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो क्रॉल करने लगता है और हाथ पैर के मूवमेंट दिखाता है. सो द बेसिक पॉइंट इज दिस दैट the direction of growth is from head to the lower portion of the body, and we can see and observe this improvement in body, these movements or control of the body in first 2 months of the age. जब बच्चे को हम देखते हैं कि सबसे पहले वो उल्टा पलटा होने लगता है और हाथ चलाने लगता है, पैरों से वो साइकिलिंग जैसे करने लगता है जब लिटा दो तो, या कुछ मूवमेंट दिखाता है, धीरे धीरे क्रॉल करने लगता है, खड़ा होना होता है, फिर वॉक करने लगता है, started to jump and the activity increases. So the concept is, the principle of growth and development is based on cephalocaudal movement. Next principle is principle of proximidistal. Proximidistal direction, as it is shown in the picture, the process is proximidistal form center or middle line to periphery direction. Development proceed from near to far outward, from central axis to the of the body towards the extremes. जैसा कहा जाता है कि पहले नाभि से बच्चे में उसका ग्रोथ होता है, तो पहले सेंटर से फिर पेरिफेरी से डेवलपमेंट होता है बच्चे का. सबसे पहले एम्ब्लिकल कॉर्ड होता है जहाँ से बेबी डेवलप करता है, एंड देन द आउटवर्ड, देन इट डेवलप्स आउटवर्ड. In proximodistal principle, the directional sequence of development during both prenatal and postnatal stages may either be from head to foot or from the central axis to the extremities of the body. The spinal cord develops before outer parts of the body.
the child's arm develops before the hands and feet develops before the fingers and toes. Fingers and toes muscles are last to develop in physical development. So as shown in the slide, this is prenatal and postnatal development both, and the first thing that develops in child's body is spinal cord. सबसे पहले जो है वो रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद फिर जैसे हम और उसके बाद उसके हाथ सबसे पहले होते हैं, हाथ से पहले आर्म्स होते हैं, और आर्म्स और उसके बाद फीट डेवलप्स होते हैं, फीट के बाद फिंगर होते हैं, और सबसे लास्ट में जो है वो मसल्स डेवलप होते हैं. तो बहुत ही धीरा धीरा ये स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द सेंट्रल टू द एक्सट्रीमिटीज़. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ, यानी निरंतर वृद्धि का सिद्धांत. So in this, growth and development is a continuous process from the conception to death. In early years of life, development consists of changes that lead the child to maturity, not only of body size and functioning, but also behavior. Even after maturity has been attained, development does not end. Change continues, which lead to the period of life known as consensus or old age. These changes continue until death ends the life cycle. So as we have discussed, that growth and development is a continuous process, and it starts when the mother conceives the baby, and after that when the baby is out, when the baby's body is developing, it is not only the mental or physical development, it is overall development, the behavior, the intellect, and the way the baby progress in life, all comes under development, and this process continues till death. It is also said that when person reaches the age of 60 or becomes senior citizen, unable to learn, or the growth stops, but this is a myth. Development never stops, it continues. It is a lifelong process. जैसा मैंने अभी बताया कि अभिवृद्धि जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जब से माँ बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है तब से ही उसकी शुरुआत हो जाती है, और जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास तो होता ही है, उसका मानसिक विकास भी होता है, और वो निरंतर चलता रहता है. हर दिन, हर हफ्ता, हर महीने में उसके फिज़िकल चेंज और मेंटल चेंज वो सब बिल्कुल दिखता है कि उसकी किस तरीके से उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है, किस तरह से वो कुछ कुछ आवाज़ निकाल रहा है, कुछ कुछ एक्टिविटी कर रहा है, और अपने सर को अब वो बैलेंस कर सकता है, अपने हाथ पैर चला रहा है, और कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर पलटने की कोशिश कर रहा है, क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है. और हाँ, ये बात तो केवल उसके इन्फेंसी तक ही सीमित है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक सर्टेन एज पर आकर, जैसे जब सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो डेवलपमेंट रुक जाता है, या जब हम वी अटेन द एज ऑफ मिडिल पीरियड ऑफ आवर लाइफ, हमारा ये डेवलपमेंट रुक जाता है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. और एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू कोट हियर इज़ दिस, दैट हम लोग जो अभी ये ऑनलाइन वीडियोज़ के लेक्चर बना रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत स्किल्ड नहीं थे, बहुत अडेप्ट नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है. बट विद द चेंजिंग पेस एंड विद द इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें ये बात पता चली कि एक ये भी ज़रिया है जिससे हम पढ़ा सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि हमें ये पता चला है कि हमने थोड़ा सीखा, हमें लगा कि हाँ ये एक कन्वीनियंट वे है जिससे हम लेक्चर्स दे सकते हैं, और ये सीखा. ये भी एक डेवलपमेंट है टीचर्स के पार्ट पर, कि उन्होंने अब जैसे होता है कि हमने ट्रेनिंग ले ली, हमारा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अब वी नीड नॉट टू लर्न मोर थिंग्स इन लाइफ, और डेवलपमेंट की स्टेज अब धीरे धीरे स्लो हो रही है. लेकिन यहाँ पे सब ने, हर एक जो भी इस फील्ड में हैं,
उन्होंने एक पेस को पकड़ा कि येस दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ टीचिंग, दिस इज़ डेवलपमेंट। एंड अ वेरी लाइव एग्जाम्पल टू कोट कि जैसा कि कहा जाता है कि मिडिल एज में या सीनियर सिटीज़न के लिए डेवलपमेंट स्लो हो जा रहा है या रुक जा रहा है, लेकिन ये बहुत एक लाइव एग्जाम्पल है। ये मैं बताना चाहती हूँ इससे कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। जैसे हमने आज एक ये चीज़ देखी, तो फिर अगर अब आगे कुछ और कुछ ऐसा नया हम लोग सीख लेंगे, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और डे बाय डे हम कुछ ना कुछ तरह से डेवलप अपने आप को करते हैं, डेवलपमेंट हम में होता रहता है। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली और सीक्वेंशियल process. Every species, whether animal or human, follows a pattern of development peculiar to it. This pattern in general is the same for individuals. Social and behavioral scientists increasingly have come to see development as a relationship between organism and environment in a transaction or collaboration. All children follow a development pattern with one stage leading to the next. Infant stands before they walk, draw circle before they make square. So this is but natural that all the human beings and all the animals develop their own peculiar pattern. They grow and develop with their own pace, with their own speed. And one thing which is very important is the development of social and behavior. Social and behavioral development is very important for human being, because it makes a bridge between the society and the environment. Because whatever a person do or earn in life, unless there is a right balance between the society and environment, everything become disbalanced. So there should be some balance or good rapport between the organism and the environment. Children also follow the same pattern, whether they are taught in their school or by their parents. They follow the same pattern. They follow or imitate their elders. For example, infant stands before they walk, draw circle before they make square. So a small or minute activity starts which give rise to a big activity. हर एक व्यक्ति, चाहे वो जीव जंतु हो या वो मानव हो, वो एक उसका एक क्रमिक एक निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहता है। और वो उसकी जो अवस्था है वो हर एक की अवस्था विकास करने की अपनी अलग है, उसकी अलग विशेषता होती है। और सभी अवस्थाओं में एक तरह का संबंध पाया जाता है। सामाजिक जो भी संबंध हम अपने बना रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है। हमें अपने वातावरण और अपने सामाजिक स्तर को एक तरीके से उन परिस्थितियों को हमें बैलेंस करना है। अगर हम वो बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं अपने सामाजिक और अपने व्यवहार से, तो हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग में या एक अच्छे इंसान में हमारी जो है वो गिनती होती है। जैसे कि बच्चों के लिए भी कहा जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें अपने घर से ही सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं या अपने शिक्षक से सीखते हैं। छोटे चीज़ें ही जो सीख कर वो उनके व्यवहार में आ जाती हैं, और वही व्यवहार हमें एक सोशल या एक सामाजिक प्राणी बनाता है। जैसे एक हमें और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा चलने से पहले खड़ा होता है, या एक स्क्वायर बनाने से पहले जो इजी होता है वो सर्कल बनाता है। उसी तरीके से जो एक व्यवहार करना है या जो सामाजिकता सीखनी है, वो छोटी छोटी बातों से ही हम घर पे सीख पाते हैं। और वो जब ही संभव है जब हमारे माता पिता या हमारे शिक्षक हमें उसी तरफ गाइड करें, और उसी तरीके से धीरे धीरे उन सभी चीज़ों का सामाजिक जो हमारी भावना है और हमारे जो व्यवहार करने का तरीका है, वो उससे ही सारा
प्रभावित होता है। बड़ा बेकार है। Next principle is principle of simple to complex. Children use their cognitive and language skill to reason and solve problems. Children at first are able to hold the big things by using both arms. At the next part, able to hold things in a single hand. Then only able to pick up small objects like peas, cereals, etc. Children when able to hold pencil, first start draw circles, then squares, then only letter, after that the words. So this is but natural, and this principle applies everywhere, that whether it is a technical field, whether it is a psychological field or physical field, the principle remains the same, that is from simple to complex. First, with the help of language skill, children start using some sounds, then catch up words, and then catch up sentence. The framing of sentence is from some sounds to words to sentence. So starts from the very beginning, key point, that is from making sounds. And in the same way, as children start holding things with one hand, then two hand, then by after some time they start holding things with one hand, then able to pick up small objects, and then able to pick up pencil. When they hold pencil, they first they see pencil as a some toy, and then they start with scribbling on the paper. After scribbling, they draw some figures, then they draw circles, then squares, and then whatever they see, if they see any apple, if they see any ice cream or mushroom, they start drawing those figures. But the start of drawing mushroom began with holding pencil or scribbling on the paper. So जैसे कि मैंने बताया कि जो सिद्धांत है सीखने का, जो सिद्धांत है अभिवृद्धि या विकास का, वो ऐसे ही है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही है। कि पहले सबसे पहले हम हल्की चीज़ सीखते हैं, जैसे कि दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ना, और फिर धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और हाथ में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि हम एक हाथ से पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम जो छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटी पीनट है या मटर का दाना है या कोई ग्रेन है, गेहूं का दाना है, वो सब भी पकड़ने की कोशिश करता है बच्चा। और जब वो अपने हाथ में उसको पेंसिल दी जाती है तो सबसे पहले वो कुछ भी ऐसे इधर उधर कुछ निशान बनाने लगता है पेपर पे। निशान बनाने के बाद वो सब कुछ सर्कल ड्रॉ कर देता है, या उसके बाद स्क्वायर बनाता है, या कुछ उसको जब दिखाया जाता है कि एप्पल है तो वो एप्पल बनाने लगता है या मशरूम बनाने लगता है। मगर यहाँ तक कि जो जर्नी, जो सफ़र उसने एप्पल बनाने या मशरूम बनाने का जो उसने इतना सफ़र तय किया है, वो उसके हाथ में पेंसिल पकड़ने से और वो जो पेपर पे वो जो कुछ ऐसे उल्टी सीधी आकृति बना रहा था, वहाँ से शुरू होता है। तो ये बहुत एक स्टेप बाय स्टेप एक अभिवृद्धि और विकास का एक क्रम है जो धीरे धीरे चलता जाता है। लेकिन हाँ, ये चलता बहुत ही मंद गति से है, लेकिन अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये बहुत ही छोटे से होकर बहुत ही अच्छा बड़ा सुंदर रूप ले लेता है। Next principle is principle of coordination between increase in size and maturation. Maturation refers to the sequential characteristics of biological growth and development. The biological changes occur in sequential order and give children new abilities. Changes in the brain and nervous system accounts largely for maturation and help children to improve in thinking and motor skills. Children must mature to a certain point before they can progress to new skill. There should be coordination between size and maturation because it is not only growth and development is not only a biological process. It is a sequential process with physical development, mental development also takes place.
by the time child reaches 2 years of age, about thousands of words become familiar to the children. It also improves thinking as well as his motor skills. He starts asking about the activities and things present in the environment. He starts asking about the flowers, he starts asking about the fruits, how the fruits get placed on the plate, and what is the color of the hair, what is the color of the plant. So it is an age of curiosity. Many things develop at this stage, and what does this show? This shows the cognitive ability of a child. It improves his thinking ability, and with this mental development, motor development or physical development also takes place. He starts walking, running, jumping, and trying to ride tricycle, trying to throw ball, trying to play small games like bat ball, and he's make blocks from the puzzles, and many activities. There are bundle of activities which he tries to do at the same time. So it is a very new experience for a child to see so many objects and so many things around the environment, and he want to be skilled in all the activities which his parents or which his elder brother and sisters are performing or doing inside the house. So आकार और परिपक्वता में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये एक बहुत ही विकास और अभिवृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है. केवल मानसिक विकास और शारीरिक विकास के साथ साथ उसका जो नई चीज़ों को सीखने का जो उसकी जिज्ञासा है वो और प्रबल होती है. वो अपने वातावरण में जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होता है. जिस तरह से वो नए नए तरह के फ्रूट्स देखता है, कभी उसने केला देखा, कभी उसने सेब देखा, कभी उसने संतरा देखा, उसके अलग अलग कलर्स देखे, उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है कि ये संतरा है तो ये दूसरे कलर का है, और ये केला है तो इसका कलर दूसरा है, ये सेब है तो उसका कलर दूसरा है. वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करता है कि ये डिफरेंट कलर क्यों हैं इन चीज़ के, इन ऑब्जेक्ट्स के, या ये खाने के ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके कलर डिफरेंट क्यों हैं. और दूसरी बात, वो जो पज़ल है वो खुद ब्लॉक से सारे पज़ल सॉल्व बनाता है. धीरे धीरे वो कभी कभी बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे डिब्बे पे डिब्बे लगा लगा के एक ऊंचा सा टावर बनाने की कोशिश करते हैं, और ट्राई साइकिल चलाते हैं. बहुत सारी एक्टिविटी वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं. अगर पेरेंट्स फ़ोन करते हैं तो वो उनको इमिटेट करने लगते हैं. तो विद फिजिकल डेवलपमेंट, विद मेंटल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस. उसी गति से वो उसका भी विकास हो रहा होता है. लेकिन इन सब का एक बहुत ही बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसके आकार और उसकी परिपक्वता में, कि जिस तरह से उसका आकार बढ़ रहा है उसी तरीके से उसकी परिपक्वता भी बढ़ रही है, उसका डेवलपमेंट उसी तरह से हो रहा है. जिस तरह से उसकी अभिवृद्धि हो रही है उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है. वो उसी तरीके से चीज़ों को कैचअप कर रहा है. जिस तरह से वो हर दिन जिस तरह से बड़ा हो रहा है, वो उसकी एक्टिविटी में हर दिन कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है. Next principle is principle of individual child depends. The tempo of development is not even. Individuals differ in the rate of growth and development. Boys and girls have different development rates. Each parts of the body has its own particular rate of growth. Development does not occur at an even pace. There are periods of great intensity and equilibrium in the period of imbalance. Development achieve a plateau, and this may occur at any level or between level. Interaction between heredity and environment influence lead to individual difference in the development pattern. Many a times it happens that the elder child learns things very easily or very early, but the later child does not learn the same at same period of time. So the
this is what is individual difference, that each child has got own learning capacity or own learning pace. So we should not deal all the children with the same capacity. Some children learn very early, some children take time to learn the same thing. In classroom also it happens that all the children do not learn with the same speed. Some children are very fast in learning, some children are slow in learning. Next principle is principle of individual difference. Principle of individual difference is very important aspect in the development of child, because each and every child learns or grow or develop with different pace, with different aspects. The tempo of development is not even. Individuals differ in the rate of growth and development. Boys and girls even have different development rates. Each parts of the body has its own particular rate of growth. Development does not occur at an even pace. There are periods of great intensity and equilibrium, and there are periods of imbalance also. Development achieve a plateau, and this may occur at any level or between level. So sometime it happens that there are two children in the house, means if there are twins, then one of the child learns things very easily or start doing things very easily. He crawl early, he stand or start walking early, but the other child who is also of the same age take more time in walking, standing. So this is individual difference, that each child does not perform activity with the same pace. This is what happens in classroom also. If the classroom is of 30 children, then all the children do not learn with the same pace. They have different timing to learn or receive things. इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिक भिन्नता. व्यक्तिक भिन्नता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभिवृद्धि या विकास का, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक बालक की सीखने की क्षमता बिल्कुल अलग होती है. जैसे एक घर में अगर दो जुड़वा बालक हैं तो उनमें भी एक बालक जल्दी चलना सीखता है, जल्दी खड़ा होना सीखता है, जल्दी भागना सीखता है, और उसी जगह पर दूसरा बालक को थोड़ा समय लगता है चलने में, उठने में, बैठने में, क्योंकि वो हम दोनों बालक को एक समय पर एक काम करते हुए नहीं सोच सकते हैं. उनका अपना सीखने का एक अलग टाइमिंग है, अपना लर्न करने का, उनके अपने ग्रो करने का, अपना उनके डेवलप करने का अलग पेस है. किसी भी चीज़ में कोई भी समानता नहीं है. वही दोनों बालक जब बड़े होंगे तो हो सकता है जो जल्दी सीखना चलना और खड़ा होना सीखा है वो देर में पढ़ना या बोलना सीखे. उसी तरफ जो दूसरा बालक है जिसने जो देर में चलना या खड़ा होना सीखा है वो जल्दी बोले. तो ये एक तरीके की भिन्नता है, व्यक्तिक भिन्नता है. कक्षा में भी ऐसा होता है कि एक कक्षा में जब 30 बालक होते हैं तो सारे बच्चे एक ही लेवल पर नहीं सीख पाते हैं. कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है सीखने में. सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिक भिन्नता. एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन. वन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैन encourage or can hinder the energy of a child, but the drive force that pushes a child to grow is carried inside him. Parent or teacher job is to clear the track, guide the child with loving acceptance, and then relax and enjoy. Many a time it happens that environment and heredity plays a very vital part in the development of the child, because sometimes because of the environment, children hesitate to speak or do any activity. They do not have that much of confidence to speak in public or participate in activity, or do not want to be a part of any activity. They are very hesitant in making friends also. They know the answer in the class, but they do not give the answers.
only because of the hesitation or maybe because of some fear that their answer will not be accepted by the teacher, or the peer group or their friends or classmates will laugh on them. So this is very regretting that because of the environment or some psychological factor, children do not open up. So this is a very important job of a teacher, or this is a challenging job for a teacher to guide or counsel children to speak up in public without any fear, or try to develop confidence in them that yes, they can do, to develop willpower inside them that yes, you can do. And it is not that everybody asks or so without fear that if they give any wrong answer and the student or the peer group will laugh, what will happen? So without any fear, without feeling any kind of hesitation, the children should be motivated by the teacher to speak up in the class, to answer in the class, and to participate in activities. This is not a very easy task for a teacher, but gradual counseling and gradual motivation will definitely bring change in the children. This development only happens when there is a good rapport between a teacher and a student. So ये जो सिद्धांत है परस्पर बातचीत का, जो एक बच्चे का अपने टीचर के साथ होता है या अपने पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर उनमें अच्छा संबंध नहीं है, वो परस्पर बातचीत नहीं करते हैं या अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, तो उनके डेवलपमेंट को बहुत बाधित करता है, उनके विकास को बहुत बाधित करता है। क्योंकि जब तक बार बार पेरेंट्स अपने बच्चे से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है या क्या अच्छा लगता है, या उसको स्टोरी सुनाएंगे, तभी उनमें एक अच्छी सी बॉन्डिंग डेवलप हो पाएगी। और वही बॉन्डिंग बच्चे को में एक आत्मविश्वास पैदा करती है, जो उसको अपने क्लास में आगे बढ़ने के लिए या किसी से एक सोशल इंटरैक्शन के लिए, बातचीत करने के लिए या फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत काम आती है। ये एक ऐसे ना वो दबी एक रिप्रेस्ड डिज़ायर है या रिप्रेस्ड एक कंडीशन है कि बच्चा सबको जानते हुए भी उसको अच्छा लगता है दूसरों से बातचीत करना, उसको अच्छा लगता है फ्रेंड्स बनाना, उसको आंसर पता है क्लास में लेकिन वो जवाब नहीं देता है। तो उसका एक कारण ये है ना कि वो हेजिटेट करता है, उसको संकोच करता है कि उसे कहीं मैम ये ना बोल दे कि गलत है या उसके दोस्त उस पर हंसने ना लगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है, वो आत्मविश्वास उसके पेरेंट्स ही सबसे पहले, तो मदर ही होती है टीचर, पहली जो द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज़ द मदर। तो वो उसकी मदर को वो कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप करना होता है कि कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू पार्टिसिपेट। विनिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये एक जॉब एक पेरेंट्स की और ये टीचर की होती है, और ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है कि अगर आपके बच्चे में इस तरीके की भावना आ जाए कि अगर वो हेजिटेट है या उसको किसी तरह का फियर है रिजेक्शन का, तो उस फियर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकास के लिए कि जो एक परस्पर संबंध होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अभिभावक का अपने बच्चों के साथ में और शिक्षक का अपने छात्रों के साथ में, वो बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए जो उसके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। The development proceeds from general to specific in all areas of development. General activity always precedes specific activity. This concept of general to specific is given by Harlock, a renowned psychologist, and he has also given two examples that for general, from general to specific. For general, he gave this example: this fetus moves its whole body, but incapable of making specific responses. And specific is infants wave their arms randomly. They can make such specific response as reaching out for an object near them.
सो हर एक चीज़ जो है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की तरफ होती है। पहले एक ये जो फिटस है वो अपनी पूरी जो है वो बॉडी को हिला सकता है, पूरे शरीर को हिला सकता है, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और इन द सेम हैंड जब वो एक इस वर्ल्ड में आता है, जब उसको लाइफ मिलती है और जब वो बाहर आता है और एट द एज ऑफ इन्फेंसी वो अपने हाथ हिला सकता है, वो कुछ कर सकता है, वो उसकी एक्टिविटी होती है। तो हर एक चीज़ जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होती है। विकास भी जो है वो सामान्य से होते हुए वो एक विशिष्ट क्रिया को पहुंचता है। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे जब एक बालक छोटा होता है, जब इन्फेंसी स्टेज होती है उसकी, तो वो एक्टिविटी क्रियाएं तो बहुत सारी करता है, लेकिन उसके अंदर वो भय क्रोध वाला कोई भी नहीं होता। वो कुछ उसमें इस तरह की कोई भावना वाला कोई भी विकास नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है और ये क्रमशः चलने वाली प्रक्रिया है जो एक सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो वो हाथ पैर तो चलाता है, लेकिन उसमें ये जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है वो फिज़िकल डेवलपमेंट के बाद होता है, और तब उसमें भय क्रोध की और डर की, इस तरह की जो भावना है वो बाद में विकसित होती है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की ही एक तरीके का विकास है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत। सो द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज कांस्टेंट फॉर अ चाइल्ड. The physiological and psychological potentialities can be predicted by observation and psychological test. The X-ray of the wrist predict the approximate weight of the child. So जो ये पूर्वानुमान की बात कही गई है, पूर्वानुमान का सिद्धांत कि किस तरह से अभिवृद्धि और विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम जब इन्फेंसी की स्टेज में बालक होता है और उसका हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरफ से उसको आवाज़ सुनाते हैं दोनों कान से, ये जानने के लिए कि उसको दोनों तरफ से सुनाई पड़ता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे 6 मंथ्स का हो जाता है, थोड़ा बैठने लगता है, तो हम उसको कुछ चीज़ें पकड़ने के लिए देते हैं, तो हम ये पता करते हैं कि उसकी मोटर डेवलपमेंट है प्रॉपर कि नहीं है, वो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसका मोटर डेवलपमेंट है। उसको हम जब कोई टॉय देते हैं जो जैसे जो आवाज़ करते हैं, टॉय रैटल टाइप का जो टॉय हम देते हैं उसको, वो अगर वो बजाने लगता है तो उससे ये पता चलता है कि हाँ इसका मोटर डेवलपमेंट ठीक है। और फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो हम उसका एक्सरे करके उसका हाइट और वेट का पता लगा सकते हैं, उसकी व्रिस्ट का कि उसकी हाइट क्या है। और एक और बात है, जब हम थोड़ा जैसे अगर वो 4-5 साल का बच्चा हो गया है तो हम उसका IQ लेवल, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, देयर आर नंबर ऑफ़ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिनसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उसकी कितना उसका IQ लेवल है और वो कितना कौन से उसका जो लेवल है वो सीखने का वो कितना है, वो क्या क्या चीज़ें जान सकता है। तो ये जो विकास और जो अभिवृद्धि है वो पूर्व अनुमान उसका लगाया जा सकता है। सो दिस प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। Heredity endows each individual with capacity, attitudes and interest. The physical characteristics such as height, color of the eyes, social and intellectual behavior are determined by heredity. The customs, tradition, belief and way of behaving is determined by environment. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से मानव विकास वंशानुक्रम पर का योग है, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का अत्यधिक प्रभाव रहता है। वंशानुक्रम में व्यक्ति जन्मजात विशेषताएं प्रखर होती हैं। वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व के कारण व्यक्ति के मौलिक स्वभाव तथा उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। वातावरण में वे समस्त ब्रह्म परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से माता पिता की आँख का कलर होता है, जैसे किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है या किसी का ब्लैक है,
तो उनके बच्चों का भी वैसा ही होता है। अगर माता पिता बहुत ही चेयरफुल हैं और सामाजिक हैं या उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है तो बच्चों का भी आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। और जो ट्रेडिशन है और बिलीफ है, कस्टम्स है, वो तो वातावरण से ही सीखे जाते हैं। चाहे ये भी देखा गया है कि अगर लो आईक्यू के पेरेंट्स हैं और लो आईक्यू का बच्चा है, लेकिन अगर वो अच्छे वातावरण में रहा जहाँ पे बहुत अच्छी संगीत की शिक्षा दी जा रही है तो उसने बहुत अच्छा वो संगीतज्ञ बन गया, या वो बहुत अच्छे श्लोक याद कर पा रहा है तो वो कुछ उसमें उसने महारत हासिल करी, या ड्राइंग या पेंटिंग में, क्योंकि वो स्कूल में जाता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइंग एंड पेंटिंग को सपोर्ट किया जाता था तो वो उसमें वो चीज़ें ज़्यादा आ गई, या उसका सोशल इंटरैक्शन, सोशल बिहेवियर, सोशल एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि द एनवायरनमेंट अराउंड हिम वाज वेरी गुड। बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया और उन्होंने उस एनवायरनमेंट से उसने सीखा। तो जो फिज़िकल अपीयरेंस है और जो आईक्यू लेवल है वो तो एक हेरिडिटी या वंशन क्रम से आता है, लेकिन जो हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं वो सोशल बिहेवियर है, कस्टम्स हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलती हैं। और नो डाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। Short height, long hairs, or tall person, tall children are all these characteristics a child gets from heredity. But environment also play a very important part because in environment child learns what he has not got from heredity. What is not innate he receives from the environment. वातावरण से जो सीखना है वो जैसे कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो भी कुछ हम सीखते हैं वो अपने वातावरण से सीखते हैं और एक सामाजिक प्राणी के होने के लिए वो बहुत आवश्यक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वी हैव टू फॉलो सर्टन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके विरुद्ध कुछ भी काम कर सकते हैं। हमें वो चीज़ें अपनानी है, हमें उन चीज़ों के साथ ही ग्रो करना है, डेवलप करना है। हमने अपने एनवायरनमेंट से ही ये सीखा कि हमें किस तरह से सिंपैथी, कोऑपरेशन एंड एक अफेक्शन, ये सब चीज़ें हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ये एक अपनी लाइफ को लीड करने के लिए। मेंटल फिज़िकल डेवलपमेंट तो जो हो रहा है वो तो ठीक है, बट इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज़ plays a very important part in our life. Without being social, without being emotional, we will stand nowhere. हमें अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए, हमें अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति साबित करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी में एक तरीके का इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें सोशबिलिटी सीखनी पड़ती है। एंड सोशबिलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल वी लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम जो वातावरण जो हमें हेरिडिटी में मिला है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज कर सकते हैं जो विच इज़ इन आवर रीच। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं जिनसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कि अगर हम इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो हम उस चीज़ में अपने आप को बेटर कर सकते हैं। अगर हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो हम गेम्स में बेटर कर सकते हैं। अगर हम गेम्स में नहीं हैं तो हम ड्राइंग में आगे आ सकते हैं। या हमारा बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर कैसा है किसी के लिए, क्या हम वेल मैनर्ड हैं, क्या हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो दैट इज़ not only responsibility of a teacher, but it is also a responsibility of a family, community or parents to guide or train children in the same way, that they have to behave or they have to follow certain norms of the society to be a part of the community. They have to help, cooperate, sympathize, and show love and affection as and when necessary to a person in order to be a better person in life. So I hope all the principles that we have discussed here will be beneficial to you. आप सभी को जो भी आज डिस्कशन हुआ उससे काफ़ी लाभ मिला होगा। जो सारे सिद्धांत हमने डिस्कस किए हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, we will continue this series. Thank you and best of luck for this.